अच्छा, इसके रिगार्डिंग पूछ रहे हो? यस मैम। ओके, सो विच कॉलम? दिस वन, फाइनल रिटर्न. यस। See, what we are doing, we are taking daily prices, and based on daily stock prices, we are finding daily returns. Okay. So we talked about the frequency, like from stock exchange, you can have details data regarding different frequencies. Okay, based on different frequencies, you can collect. Like it could be daily, it could be monthly, it could be yearly. Okay, and in week, if you do averaging for 5 days, then you can have even weekly prices. So there are 4 types of frequencies, and different research papers and researches you will see according to different frequencies. Okay, if it is about long term, majority of the researches uses monthly returns. Okay, but as a starting point, I thought that we should at least first try with daily returns. Okay, daily stock prices. And then after, if you go for any kind of research, then you can look for articles, and you can search for like which methodology that article is following. So they may be following yearly, they may be following monthly, or they may be following daily. So what I want to explain is that the column C is showing you daily returns, right? Okay. Now this daily returns I have converted into percentages. Then what I did, I summed it up. You can see that, hai na? E4 till E168. So 165 observations I have. I took data of only 8 months starting from January to August. So I have 165 observations. So first I did summation. Okay, मैंने उसका total किया. Now if I do total, then this total will be for 165 days, and um, for analysis we want yearly returns, right? मतलब मैंने अभी के लिए ये स्टैंडर्ड बनाया है कि वी वांट ईयरली. नाउ दिस विल बी रिटर्न फॉर 165 days, but if I talk about year, then in year there would be 250 trading days, and here I have multiplied it by 250, but exact yearly return could be found out by multiplying it with 365. तो आपको ये छोटी छोटी डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स जो है वो छोटी छोटी चीजें समझनी पड़ेगी कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग. अगर मैं यहाँ पे इसको 365 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो it will be actually yearly return. But why I took 250 days? Because there are only 250 working days in a year if we talk about stock market. तो मैंने इसीलिए 250 लिया है. यहाँ पे आप 360 भी ले सकते हो, क्योंकि हम if we talk about a year, then we will take 365 days in a year. तो वो भी कर सकते हो. ठीक है, तो इसीलिए मैंने पहले क्या किया, समेशन, फिर समेशन को डिवाइड बाय 165 किया कि ऑन एन एवरेज पर डे मैंने कितना रिटर्न अर्न किया. तो पर डे मेरा कितना आ रहा है, 0.04%, 0.0487% मेरा आ रहा है. नाउ आई वांट इट टू कन्वर्ट, आई वांट इट टू कन्वर्ट इन ईयरली रिटर्न, राइट? एक मिनट है, साथ साथ में मैं एक्सेप्ट भी करते जा रही हूँ, तो बीच में कंफ्यूजन हो रही है. So what I am doing, I am converting this into yearly return, and for that I am again multiplying it by 250. तो मुझे ये जो लास्ट में मिला वो ईयर का रिटर्न मिला. मे इट बी कि कोई आर्टिकल अगर आप रीड करो या कोई रिसर्च रीड करो, तो वो ऐसे बताएगा कि नहीं 365 से मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज 365 डेज फॉर वी व्हाट वी एक्सपेक्ट इज फॉर 365 डेज. तो 365 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको और ज्यादा रिटर्न परसेंटेज मिलेगा. बट टू बी कंजर्वेटिव मैंने 250 डेज लिए. ठीक है, ओके मैम. समझ में आया? यस मैम. हाँ, यस मैम. इसमें हाँ कैलकुलेशन सिंपल है, कॉम्प्लिकेशन कहाँ आएगा, रिगार्डिंग फ्रीक्वेंसीज. तो आपको देखना है कि मैंने कौन सी फ्रीक्वेंसी के डेटा लिया है. मैंने डेली लिया है, मैंने वीकली लिया है, मंथली लिया है या ईयरली लिया है. अकॉर्डिंगली यू विल बी डूइंग मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड एवरीथिंग. तो अगर मैम मैंने डेली लिया है, ईयरली डेटा ही लिया है.
बट ये मैंने एवरेज नहीं निकाला है, आपने जो सबमिशन किया है ना उसी से मैंने रिस्क और रिटर्न कंपेयर कर दिया है, इसलिए मुझे डाउट था। तो ईयरली रिटर्न मतलब कितने ईयर्स का लिया फिर आपने? 1 ईयर का आपने कहा था ना मैम। हाँ बट स्टॉक प्राइसेस तो डेली वाली ही ली होगी ना? हाँ, तो उसमें जो अच्छा। करंट करंट प्राइस मतलब कि ट्रेडिंग डे का जो भी प्राइस था वही लिया है, तो उसमें तो कुछ चेंजेस अ, आएंगे नहीं। अच्छा, तो मतलब ये जो समेशन आया है वो आपका फाइनल आंसर होगा, राइट? हाँ, हाँ, तो ये तो जो ये समेशन आगे आएगा, हाँ, आगे की वो कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है ना मैम? नहीं नहीं, ओके। एंड दैट विल बी कंजर्वेटिव साइड, क्योंकि हमारा जो स्टॉक है वो 365 डेज के लिए ट्रेड होगा ना। तो अगर हम्म। आपको करना है तो ये कर सकते हो कि जैसे समेशन आया दैट विल गेट डिवाइडेड बाय फर्स्ट 250, ओके, फिर जो स्कोर आएगा इंटू 365, यानी आप आपके 250 ट्रेडिंग डेज का जो रिटर्न है वो आप 365 डेज में कन्वर्ट कर रहे हो, ओके। बट नहीं करोगे तो भी चलेगा हाँ, बिकॉज अल्टीमेटली। रेडी हो गया है। अगर हाँ, आप क्या कर रहे हो अभी सीखने के लिए ये सारा कैलकुलेशन कर रहे हो, जब आप आपके एनालिसिस के लिए यूज करोगे एट दैट टाइम यू मस्ट बी क्लियर अबाउट द फ्रीक्वेंसी, व्हाई आई एम मल्टीप्लाइंग समथिंग, व्हाई आई एम डिवाइडिंग समथिंग, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? तो एंड वो अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सिखा रही हूँ मैं कि दो आपको तीन, फ्रीक्वेंसी। हाँ बोलो। आप बोल लीजिए पहले। हाँ, तो मतलब अल्टीमेटली मंथली लो, वीकली लो, डेली लो या ईयरली लो, लाइक यू मे बी टेकिंग 10 years डेटा, ईयरली डेटा और समथिंग। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है, इन अ पर्टिकुलर 1 year, ऑन एन एवरेज हाउ मच आई एम अर्निंग। तो अल्टीमेटली एनालिसिस ईयरली बेस पे ही होगा, तो कुछ भी हो, वीक हो, मंथ हो, उसको कन्वर्ट कर दो ईयर में। तो जैसे वीक है तो वीक का फिर इंटू 52 आएगा, है ना? कि 52 वीक्स करोगे, इंटू 52 वीक्स करोगे तो आपको ईयर का रिटर्न मिलेगा, ऐसे। हाँ, अभी आप बोलो। मैम बहुत से मतलब दो तीन स्टॉक्स में ऐसा था कि उन लोगों ने बीच बीच में डिविडेंड भी दिए हुए हैं, तो उसका भी दिया हुआ था, तो वो तो रिमूव कर देना है ना? मतलब अभी फिलहाल बेसिक सी, वो भी अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है ना तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे काफी लोगों ने मुझे ये पूछा कि एडजस्टेड क्लोज ले सकते हैं कि नहीं, तो ले सकते हो, क्योंकि एडजस्टेड क्लोज क्या होता है, वही इन अ पर्टिकुलर डे डिविडेंड इज गेटिंग डिक्लेयर्ड, या बहुत सारी चीजें होती है ना, राइट इश्यू होता है, बोनस इश्यू होता है, तो एडजस्टेड क्लोज विल टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स, एंड इफ यू आर taking this adjusted clause, yes it will be well and good, ठीक है। बट मैंने जितने अभी तक रिसर्च पेपर्स देखे हैं उसमें क्लोजिंग प्राइस पे ही वो लोग प्योर बेसिक क्लोजिंग प्राइस पे ही वर्क करते हैं, हाँ, तो ठीक है। क्लोजिंग प्राइस ही लिया है मैम। हाँ, और अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है कि जैसे डिविडेंड अगर डिक्लेयर हो रहा है एंड यू वांट टू एडजस्ट योर क्लोज फॉर दैट डिविडेंड प्राइस, तो थियोरेटिकली हम क्या बोलते हैं कि जितना डिविडेंड डिक्लेयर होगा योर क्लोजिंग प्राइस विल गेट रिड्यूस्ड बाय दैट अमाउंट। यानी अगर 20 रुपये आपका डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है ना, फॉर एन एग्जाम्पल 1 जनवरी को डिक्लेयर हो रहा है, तो अगर वो 20 रुपीज है तो इट विल बी 2149.8, यानी आपने क्या किया, डिविडेंड माइनस कर दिया। सो यू हैव टू एडजस्ट लाइक दैट, कि डिविडेंड अगर डिक्लेयर हो रहा है तो आपके प्राइस में से मतलब नेक्स्ट डे आपका प्राइस उतना रिड्यूस हो जाएगा, आपके डिविडेंड जितना रिड्यूस हो जाएगा, तो उस हिसाब से आप खुद भी एडजस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। बट फॉर दैट यू नीड टू बी क्लियर अबाउट ऑल योर फंडामेंटल्स, ऑल योर कंसेप्ट। तो अगर आप कंसेप्ट से आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप कर सकते हो जो भी एडजस्टमेंट करना है एंड ऑल, बिकॉज एग्जैक्टली करेक्ट थिंग इज कि वो एडजस्टमेंट करना है आपको, फॉर्मूला भी वही दिया है ना, ओपनिंग प्राइस होती है, फिर आप माइनस एडजस्टमेंट्स करते हो और उसके बाद आपका जो भी प्लस माइनस होके आता है उसको डिवाइड करते हो प्रीवियस ईयर या प्रीवियस पीरियड से, प्रीवियस डे, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस मंथ, यस मैम। ठीक है। ओके मैम। और कोई डाउट? यस मैम मैम, सेकंड। मैम हाँ बोलो। मैम ये जो 8.044 है ये आपकी सम टोटल अमाउंट है, राइट, रिटर्न की? हाँ हाँ और उसको आपने नंबर ऑफ डेज से डिवाइड किया था तो 0.04 अमाउंट आई। हाँ
है ना मैम, तो मैंने वो 0.04 तक किया है मैम, और मैंने उसको एज अ रिटर्न के अमाउंट कंसिडर किया है, तो वो गलत नहीं होगा ना? मतलब आपने जैसे काजल की तरह फुल ईयर लिया है ना, तो हाँ। आपका फर्स्ट आंसर ही ईयरली आ जाएगा रिटर्न। तो अभी फिलहाल आप उसमें कुछ ये मत करो, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कुछ भी मत करो, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड। ओके मैम, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है ना अब नहीं नंबर ऑफ है, डेज नहीं से? है, नहीं है। वो एक ही उसमें होगा कि अगर आपको 365 डेज का रिटर्न चाहिए, तो फिर आपके ट्रेडिंग डेज देखो कि 240 है, 245 है, 250 है, एग्जैक्ट नंबर क्या है। ठीक है, तो मैम 8.04, 247 आ रहा है। हाँ, तो 8.04 डिवाइडेड बाय 247 करोगे तो पर डे का मिलेगा। एंड यू वांट टू फाइंड आउट फॉर 365 डेज, तो पर डे इंटू 365 करोगे तो ईयरली मिल जाएगा ऐसे। ओके 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 हाँ, मैम, तो मैम हाँ, वो भी ऐसे गलत तो करते नहीं होगा ना, आप जो बोल ये रहे हो? सेकेंड वाला जो दिख रहा है ना, 0.04, वहां हाँ, तक आके आप नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो पर डे हो जाएगा। तो तो उसको आपको इंटू इंटू थ्री थ्री सिक्सटी सिक्सटी फाइव फाइव हाँ, अदरवाइज ये जो फर्स्ट रो में है अभी दिख रहा है ना समेशन, आपको हाँ मैम। 7 रो में वही रहने दो, वो भी चलेगा, वो भी आपका ईयरली रिटर्न ही है। बिकॉज मैम हमारा जो एसडी अच्छा आया ओके। है वो तो उतने ही डेज का आया ना जितने डेज की ट्रेडिंग हुई है। हाँ, तो 365 करेंगे तो एसडी में तो चेंज प्रॉब्लम आ जाएगी फिर। नहीं, उसको फिर हम डेली नहीं, वो एक स्कोर होता है। ठीक है, रिटर्न क्या है, हमने रिटर्न पर डे फाइंड किया ना, एवरी डे के लिए रिटर्न फाइंड किया, एवरी डे क्या चेंजेस आ रहे हैं वो किया, फिर उसके बाद उसका समेशन हुआ। ठीक है, यस। सो रिटर्न के लिए डेज मैटर करते हैं, बट स्टैंडर्ड डेविएशन, सी व्हाट exactly we are doing, we are relying on statistics, we are relying on averaging and all। तो मतलब ये अल्टीमेटली एक स्टैटिस्टिकल स्कोर ही है, ये कोई मतलब रिटर्न आप एक्चुअल बोल सकते हो, बट स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ड ऑन 1 ईयर्स डेटा, इट्स नॉट द एक्चुअल अमाउंट। ठीक है, एक साल का डेटा लेके स्टैंडर्ड डेविएशन करोगे तो 2.46 मिलेगा, मे बी 3 साल का लेके करोगे तो कुछ और मिलेगा, चेंज होगा। 5 साल का लेके करोगे तो कुछ और मिलेगा। सेम इज विथ योर रिटर्न, कि मैं अगर 2 साल का लूंगी मुझे 8.04 नहीं कुछ और ही मिलेगा, बिकॉज दैट पर्टिकुलर year's financial condition, operations, everything of that company is going to affect that particular year's return। ठीक है, तो यस what मैम। I mean to say is कि standard deviation आप एक साल का कर मतलब 160 डेज का कर रहे हो ना, तो उसका फिर आप डिवाइडेड बाय 165 इंटू 250 या 365 करोगे तो वो प्रॉपर नहीं होगा कैलकुलेशन। रिटर्न के लिए वो प्रॉपर कैलकुलेशन है। ठीक है, यस मैम। मैम तो ये जो पर डे का हम फाइंड आउट करते हैं, ये शॉर्ट सेलिंग के लिए काम आता होगा ना मैम? पर डे का हम जो मैम इंटू 365 करते हैं, हाँ, जैसे हाँ, कि टोटल करके, ये शॉर्ट सेलिंग जैसे हमें पर डे के रिजल्ट चाहिए कि इस दिन हमने अगर इन्वेस्ट किया तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि इतना रिटर्न मिलेगा, उसमें काम आता होगा ना? हाँ, सिम्युलेशन, इसको आप जो पूछ रहे हो ना वो सिम्युलेशन बोलते हैं। और इंट्राडे, आप आपको हाँ अगर यस मैम। इंट्राडे में, हाँ, इंट्राडे में जाना है या स्पेक्यूलेशन में, नॉट एग्जैक्टली इंट्राडे, आप ये सोच रहे हो कि 1 वीक या 15 दिन या 1 महीना कहीं पे इन्वेस्ट करके मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट चाहिए, तो इफ यू वांट टू अर्न ह्यूज और हायर लेवल ऑफ प्रॉफिट थ्रू स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी, तो आप ये डेटा यूज करोगे एंड इट इज कॉल्ड सिम्युलेशन। ठीक है, वो मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन एंड लॉट मेनी मॉडल्स आर देयर, तो वो मॉडल यूज करके बेस्ड ऑन पास्ट प्राइजेस यू विल ट्राई टू सिम्युलेट द फ्यूचर प्राइजेस। प्रेडिक्ट मतलब अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, प्रेडिक्ट करने की ट्राई कर रहे हो, तो यू विल ट्राई टू प्रेडिक्ट फॉर नेक्स्ट पीरियड या नेक्स्ट 15 डेज, नेक्स्ट 30 डेज, विच एवर पीरियड यू वांट टू इन्वेस्ट, या फिर इंट्राडे कि नेक्स्ट डे ही क्या प्राइस हो सकता है। ठीक है, मैम तो अभी असाइनमेंट में हम लोग को ये एसडी परसेंट फाइंड करने के बाद ये इंटरेस्ट का टोटल करने के बाद इतना ही करना है ना खाली? उसके बाद वो डिवाइड जो बाय दूसरा 365 शीट दिया था ना, ये 10 आप एवेन्यूज एवेन्यूज वाला। हाँ, तो वो भी तो करना है आपको, एक हाँ उसमें मिनट। खाली हाँ, लो मॉडरेट हाई खाली वही मेंशन करना है ना उसमें? हाँ, हाँ, वही मेंशन करना है।
बिकॉज मैम इसमें हम डिस्क्रिप्शन लिखने जाते हैं तो पूरा फॉर्मेट ही बिगड़ जाता है, हाँ इतनी बड़ी बड़ी क्या साइज का नहीं, बट रहता है। डिस्क्रिप्शन तो चाहिए मेरे को, जिनको समझ में आ रहा है वो डिस्क्रिप्शन। एक मिनट, पहले ये इक्विटी वाला डिस्कस कर ले। इसमें है किसी को कुछ ये डाउट? तो नहीं मैम, ये तो हो मैम, गया। इसमें क्या था? इसमें इसमें रिटर्न किया, रिस्क किया, फिर उसके बाद ये टाइप क्या करना है इसमें? गुड बेस्ट मतलब मतलब आपको वो कैसा बताना है। लगता है वो स्टॉक बेस्ड ऑप्शन ऑन के। ओके ओके, हाँ। हम्म। बेस्ड ऑन रिस्क रिटर्न एनालिसिस आपको वो कैसा लगता है? मैम, वर्स्ट है रिटर्न मतलब रिटर्न में ज्यादा? रिटर्न्स में क्या आएगा? टोटल सम ऑफ वो आएगा कंपनी का, टोटल जो हाँ सम हाँ किया। हाँ, जो लास्ट में हाँ, किया ये टोटल। जैसे 8 पॉइंट समथिंग आपका, तो ये हम्म। स्कोर 250 डेज का आ जाएगा, तो ये स्कोर वहां पे ट्रांसफर कर दो। ओके मैम। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर लो यहाँ पे। रिस्क, ये आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन आपने फाइंड किया है वो दिस दिस परसेंटेज 2.46%। 2.46। ओके मैम। ठीक है, तो वहां पे आप वो कॉपी पेस्ट कर लो। फिर कैसा है, मतलब बेस्ट है, गुड है, बेटर है? बेटर इन द सेंस इफ कंपेयर्ड विथ अदर स्टॉक्स, तो वो कैसा है? एंड डिसीजन मतलब आप होते एज, क्योंकि जैसे आप अगर कोई 4 स्टॉक को बोलोगे कि आई वुड बी इन्वेस्टिंग इन दिस 4 एंड रेस्ट ऑफ द स्टॉक्स आई वोंट इवन रेकमेंड, ठीक है? मे बी कि मेरा ऐसा हो कि मुझे 2 में ही करना है, कोई और बोले कि नहीं मैं 6 में करूंगी इन्वेस्ट। ठीक है, so it depends on your risk appetite and again your expectation of future returns and future prices and all, and how much you want to earn, तो ये पर्सनल डिसीजन होता है। ठीक है, बट आप क्या डिसाइड करोगे बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस वो। ठीक है, वन मोर थिंग, ये आप see you are new to this subject and that's why we have to go forward slowly with simple calculations, and then after I can add complication or difficulty level we can raise। ठीक है, तो ये क्या है, मैंने सिंपल दिया है, तो ये ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ रिस्क और रिटर्न के बेसिस पे ही आप डिसीजन ले लोगे। ठीक है, स्टॉक, for that analysis, stock analysis only we are learning fundamental and technical analysis, and into fundamental analysis you are going to analyze economy, industry। Okay, so next assignment I will be giving you to apply these models on the stocks you have chosen and the industries which are being represented by the stocks। तो आप इकोनॉमिक एनालिसिस करोगे, इंडस्ट्री, देन कंपनी, जो स्टॉक्स चूज किए हैं ये 10 उसका। ठीक है, तो वो हम बाद में बात करेंगे, बट व्हाट आई मीन टू से कि ये बहुत बेसिक टाइप का कैलकुलेशन है, बहुत बेसिक टाइप का एनालिसिस है, बट बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। क्या फ्यूचर में कभी भी एनालिसिस स्टार्ट करोगे तो सबसे पहला तो रिस्क रिटर्न आपको फाइंड करना ही करना है, उसके बाद आप बाकी की चीजें देखोगे, फंडामेंटल्स एंड ऑल। ठीक है, तो ये चीज बेसिक है, बट इसी के बेस पे डिसीजन ले लोगे ऐसा नहीं है, अदरवाइज पूरा सब्जेक्ट हम पढ़ते ही नहीं। ओके, यस। मैम हाँ, तो ये पूरा रिगार्डिंग हम दिस, पे होता है डिसीजन, गुड बेटर हाँ बेस्ट वाला। क्या? मैम पूरा मतलब ये हम पे डिसीजन है ना कि हमारे लिए स्टॉक गुड है, बेटर है या बेस्ट है, वर्स्ट है, हाँ, मतलब वो कंपैरिजन मैंने सिखाया था ना कि एट हाँ। पर्टिकुलर लेवल ऑफ रिस्क रिटर्न शुड बी मैक्सिमम, और एट पर्टिकुलर लेवल ऑफ रिटर्न रिस्क शुड बी मिनिमम। यस उस मैम। हिसाब से आपको, तो ये जो है ये थोड़ा बहुत सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ये जो डी कॉलम है ना वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, बेस्ड ऑन रिस्क रिटर्न कंपैरिजन ऑफ ऑल द स्टॉक्स। बट ई की मैं बात कर रही हूँ, ई विल बी सब्जेक्टिव, E will differ from person to person. Risk appetite and lot many things would be there. ठीक है, behavioral aspects also will be there. So based on that, this decision whether you want to invest or not, that will get decided. तो E column है वो subjective है, D column है वो objective है, based on risk return comparison and risk return analysis you will be doing. ठीक है, ओके मैम। now इसमें क्या डाउट है? हाई लो मॉडरेट। मैम इक्विटी में भी तो हाई रिस्क होता है, म्यूचुअल फंड में भी हाई रिस्क होता है, रिटर्न भी हाई होता है, तो सब में हाई हाई ही आ रहा है। नहीं, इक्विटी पढ़ा में हाई आपने रहेगा, चैप्टर म्यूचुअल फंड में पढ़ा? मॉडरेट रहेगा। मॉडरेट मॉडरेट आएगा, रहेगा। एग्जैक्टली राइट। यस, म्यूचुअल फंड में आप ये करते हो ना, डाइवर्सिफाई करते हो, कुछ हाँ कुछ हाँ, में बैलेंस में गूगल पे। जाओगे तो इक्विटी एंड यस। डेट दोनों मिलेगा। हाँ तो मैम ठीक है, गूगल तो में आप ऐसा ही लिखा था कि अगर गूगल नहीं डाइवर्सिफाई करना करते। है,
नहीं नहीं, गूगल करना ही नहीं है, तो बुक इसलिए में मैंने से रीडिंग। तो पढ़ना है ना, हाँ बुक में से तो पढ़ना है ना मैम, हाँ, ये ये इसलिए अपनी तो मर्जी रीडिंग से थोड़ी मटेरियल लिख दिया। सकते हैं। बुक या गूगल, क्या बोल रहे हो आप? मतलब इसको कहीं से पढ़ के ही लिखना होगा ना मैम, तो अपने मैंने हाथ से रीडिंग तो नहीं लिख मटेरियल सकते दिया ना। ना आपको, हाँ तो बुक में गूगल भी मत मतलब, चैप्टर करो। 2 पढ़ना है, चैप्टर 2। हाँ पता है मुझे, कल ही मैंने सेंड किया निशा को। तो उसमें तो ऐसा वो है कि पढ़ो। गूगल में गलत तो नहीं बताएगा, गूगल ने थोड़े ना किया म्यूचुअल फंड बहुत रिस्की होता है, इक्विटी हाँ, रिस्की होता है, ऐसे गूगल म्यूचुअल फंड को भी रिस्की बता रहा है। मतलब ऐसा बोला है कि अगर हम डाइवर्सिफाई करते हैं तो वो लेस रिस्की हो जाता है, बाकी तो फिर हाँ रिस्की होता ही है। ऐसा, हाँ, तो मॉडरेट हुआ ना वो, हाँ ऐसे। या तो फिर आप ऐसे मैम तो लिख उसमें सकते हो कि रिस्की तो है बट नॉट, इफ यू कंपेयर इट विथ इक्विटी देन इट विल बी अ लोअर रिस्क एवेन्यू। तो इक्विटी के कंपैरिजन में तो कम ही होता है, हाँ ये दो तो यू है। मे से इट हाई, है ना। तो इसीलिए आप जैसे बोल रहे थे ना कि डिस्क्रिप्शन कुछ लिखना है क्या, नहीं तो हाँ वो आपकी अंडरस्टैंडिंग, जैसे आप अगर इसको रिस्की बोल रहे हो तो आप ये स्टेटमेंट ऐड करोगे कि इसके बाद वाले जो एवेन्यूज है उसके साथ कंपेयर करेंगे तो रिस्की है, बट इक्विटी के साथ कंपेयर करेंगे तो इतना रिस्की लेस नहीं है। रिस्की। तो अल्टीमेटली व्हाट वी आर डूइंग कंपैरेटिव एनालिसिस। तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन लिखना ही है, ये सेल का साइज बढ़ा देना आप, है ना। ओके हाँ मैम। मैम, यही पूछ रहा था, हाँ। हाँ, साइज बढ़ा देना, और फॉर्मेटिंग तो थोड़ा बहुत उससे भी तो सीखोगे आप। फॉर्मेटिंग बिगड़ रहा है तो बिगड़ने दो, सीखोगे, कुछ नई चीज सीखोगे, ओके मैम। है ना। तो यस डालो मैम। डिस्क्रिप्शन, आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लिखो कि आप उसको अगर हाई बोल रहे हो तो क्यों हाई बोल रहे हो, मॉडरेट बोल रहे हो तो क्यों मॉडरेट बोल रहे हो, ठीक है। ओके मैम। और कोई डाउट? नहीं मैम। नो मैम। नो यश, मैम। आप कुछ पूछ रहे थे? हेलो, मैम समझ पड़ी गई। पढ़ यश गई को भी समझ? मैम यही पूछना था अभी न्यूज का। ठीक है। और एवेन्यूज के बारे में चैप्टर 2 में से पढ़ना। इसमें और एक आएगा, वो ऐड नहीं किया है क्योंकि ज्यादा लोग मे भी यूज नहीं भी करते हो, डेरिवेटिव्स, और वो फिर आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा, पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो एट द एंड यू विल कम टू नो अबाउट दिस पैरामीटर्स। ठीक है, तो वो डेरिवेटिव्स मैंने नहीं लिया है, अदरवाइज डेरिवेटिव इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज इन्वेस्टमेंट एवेन्यू। मतलब आप हेजिंग नहीं कर रहे हो या other purpose, you are going for other purposes like speculation or arbitraging, तो वो पर्पस के लिए हम उसको एज इन्वेस्टमेंट एवेन्यू भी कंसीडर करते हैं, बट आई हैवंट एडेड दैट पर्टिकुलर एवेन्यू। ठीक है। मैम ये कन्वीनियंस जो दिया हुआ है आपने, वो हम्म। वो क्या सोच के उसका आंसर लिखना है वो बताइए ना। कन्वीनियंस मतलब अगर आपको उसमें इन्वेस्ट करना है तो विल यू फील डिफिकल्टी, ठीक है। लिक्विडिटी, उसका लिक्विडिटी तो अलग से लिया है, बट कन्वीनियंस में क्या आएगा कि आपको इजीली वो मिलता है, आप इजीली मीडिएटर्स को अप्रोच कर पाते हो, या फिर इजीली आप खुद से इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे इफ यू टॉक अबाउट बैंक एफडी, तो बैंक एफडी के लिए और ज्यादा नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, नो मीडिएटर इज रिक्वायर्ड, यू कैन डायरेक्टली गो टू एनी बैंक एंड यू कैन फिल अप द फॉर्म एंड यू कैन ओपन इट। ठीक है। इक्विटी, सो इक्विटी रिक्वायर्स नॉलेज, okay, and you need to approach broker or mediator and you have to pay him something, okay। अच्छा। तो कन्वीनियंस इन द सेंस कि इजी, कितना इजीली अवेलेबल है विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट, विदाउट एनी एडिशनल टेक्निकल नॉलेज। सो कन्वीनियंस में आपका नॉलेज आएगा, कॉस्टिंग आएगा, इजीली अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। फिर आपके ओके नीड जो है उसके हिसाब से मैचिंग प्रोडक्ट आपको मिल रहा है कि नहीं, so that is called convenience, understood। यस मैम। और कोई पैरामीटर में डाउट? नो मैम। ठीक है, तो अपने चैप्टर पे आ जाते हैं अभी। मैम वो कैपिटल एप्रिसिएशन में क्या आएगा? एप्लीकेशन हाँ, एक मिनट। कैपिटल एप्रिसिएशन मीन्स कि इफ यू आर इन्वेस्टिंग फॉर 5 years और से सपोज 10 years, ओके, तो
जैसे हम एक डबलिंग पीरियड वाला फॉर्मूला होता है डिवाइडेड बाय 72, आई थिंक इन वन ऑफ द सब्जेक्ट्स यू विल लर्न दैट। ठीक है, तो जैसे बोलते हैं ना, ये पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स हो गया या आपका डिबेंचर्स हो गया, सो दैट में डबल योर मनी इन 8 years or something, 8 years, 9 years it may take. So what it exactly is capital appreciation, that your capital is being if you are not earning regular dividends or if you are not earning regular interest, okay, may it be dividend. Take example of equity. If you are not earning regular dividend, so you will be expecting capital appreciation, meaning thereby you every year you will have higher rate of return, and by that way you will have huge corpus. So if you compare it with other revenues, like other revenues may be doubling your money into 8 or 9 years. So you may expect that your stock should double your money within 5 years or 6 years. So that is called capital appreciation. बढ़ना, आपका जो corpus है, आपका fund है, वो linear पे नहीं but exponential, somehow exponential growth देना. Okay, and that is the crux of your compounding, कि आपके इंटरेस्ट पे या तो आपके रिटर्न पे भी आपको रिटर्न मिलता है, या आपके that is called capital appreciation. And how Okay. speedy that capital appreciation is. ठीक है, हाँ मैम। मतलब लेमैन अगर आप बोलो तो आपका फंड बढ़ना, आपका जो कॉर्पस आपने इन्वेस्ट किया है वो बढ़ना, अब कौन कैसे स्पीड पे बढ़ रहा है उस पे डिसाइड होगा आपका कैपिटल एप्रिसिएशन, कि हाई है, मॉडरेट है या लो है। तो हाई का मतलब जैसे कंपाउंडिंग इफेक्ट बोलते हैं हम, या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं, या वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न, वेरी हाई लेवल और हाई परसेंटेज ऑफ रिटर्न, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि उसका ग्रोथ हाई है। कैपिटल अप्रिसिएशन एक्सपेक्टेशन यू कैन हैव हाई, ठीक है, किसी में मॉडरेट होगा, किसी में लो होगा। बराबर मैम। और कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, so yesterday we were discussing about your this parameters, macroeconomic parameters, right? And we discussed till government budget and deficit, and next is price level and inflation. So why you want to check price level and inflation as far as your investment analysis is concerned? क्या इफेक्ट करेगा प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन? हेलो, मैम किससे रिलेटेड आप पूछ रहे हैं? what we are learning right now, variables to describe the state of the macroeconomy. Okay, and why we are analyzing macroeconomy, क्यों मैक्रो इकोनॉमी क्यों हम एनालाइज कर रहे हैं, सो दैट वी कैन फाइंड आउट विच इंडस्ट्रीज कुड बी टारगेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट्स और विच स्टॉक्स आर गोइंग टू ग्रो इन फ्यूचर। तो मतलब हम इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के लिए ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। And if we are talking about economic level parameters, then they will be very general. They may be affecting lot many industries at a time, and that's why we want to know the impact of this all parameters on entire economy, or say suppose few industries which you are targeting for investment, or you want to analyze its growth prospect in future, and that's why this parameters you are going to analyze. So my question is how price level and inflation is going to affect your investment decision, your analysis of particular economy, industry and company, that I want to know. मैम स्पेंडिंग ऑन इन्वेस्टमेंट्स इफेक्ट होगी इससे?
हाँ, वो तो हमने कल डिस्कस किया था ना, दिस ऑल पैरामीटर्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टिंग योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, तो आई थिंक पहले 5 पॉइंट्स जो है वो हमने डिस्कस कर लिए थे, टिल गवर्नमेंट बजट एंड डेफिसिट। Yes. Yes, we talked about loan from RBI, we talked about a loan from World Bank to cover up this deficit, and ultimately that is how it is going to affect your investment decision. Means if floating money is getting reduced, okay, deficit. If RBI government is using more funds in coping up with the deficit component, okay, then what will happen, that floating money in economy will get reduced, and if floating money is getting reduced, then consumable income of retail customers as well as industries, funds with industries will get reduced, and ultimately it will lead to lower level of savings and investments. Okay, savings as far as retail customers are concerned and investment both, we people will be investing less. Same way companies, if they cannot have enough funds for investments, their investments are going to decline, okay, decrease. So that we talked about government budget and deficit कि वो कैसे affect करेगा. ठीक है, even savings and investments. ठीक है, now we are talking about price level and inflation. आई थिंक ये टॉपिक आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो, मतलब आप स्टिल यू हैव डाउट कि व्हाई वी आर लर्निंग दिस टॉपिक। ऐसा है क्या, अभी भी आपको डाउट है कि ये टॉपिक सम फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं? अभी भी ये मैम डाउट है? जैसे इन्फ्लेशन, मैम अगर जैसे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाएगा तो हर चीज की कॉस्ट बढ़ेगी, जैसे रॉ मटेरियल और इन सब की, तो इंडस्ट्री पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा मैम। ये एग्जैक्टली, मनी सप्लाई भी इंक्रीज होगी। यस, राइट, ठीक है, लाइक वेज ऑफ वर्कर्स भी इंक्रीज हो जाएंगे, ऐसे इंडस्ट्री से बहुत तरह से इम्पैक्ट करेगा इन्फ्लेशन। सेम गोस विद एग्जैक्टली राइट, डिफ्लेशन। एग्जैक्टली राइट, ठीक है। तो मतलब वी आर, हाँ, we are on the same platform, whatever I want to explain you people are understanding, है ना? बट एक क्लास से दूसरी क्लास पे जब आता है तो दूसरी क्लास में वापस मुझे ऐसे लगता है कि मतलब आप लोग अफ्रेश, मतलब एकदम से नया कुछ देख रहे हो, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन यू पीपल शो। समझ में तो नहीं आ रहा मैम है ऐसे, ना? हाँ मैम समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है। ठीक है, ठीक है। सो प्राइस लेवल इन इन्फ्लेशन, रिचा ने बताया वो एग्जैक्टली राइट, एंड काजल टोल्ड अबाउट मनी सप्लाई, इंक्रीज इन मनी सप्लाई, दैट इज द मेन रीजन फॉर higher level or level of inflation, or maybe कि to manage the rate of inflation RBI takes certain measures, है ना, कि रेपो रेट इंक्रीज करना, रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज करना, एंड इन केस ऑफ डिफ्लेशनरी पॉलिसी they will be reducing that. So these two are highly related, money supply and inflation are highly related, and that even you can check, like if repo rate or reverse repo rate is increasing or vice versa, then you can check with inflation as well that why RBI is taking certain steps. Okay, क्योंकि उनको लग रहा है कि बहुत ज्यादा inflated economy है, और मे बी कि they'll be checking that GDP growth, economy's GDP growth as well, and the money supply. If your GDP is not growing at the rate at which your money supply is increasing, then yes, the ultimate byproduct will be हायर लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, कि आपको जितना मनी रिसोर्सेस चाहिए टू सपोर्ट योर जीडीपी प्रोडक्टिविटी, यू आर गिविंग मच मोर देन दैट, एंड व्हाट अल्टीमेटली देन आरबीआई डज, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज कर देंगे, एंड बाय दैट वे इट विल ट्राई टू रिड्यूस फ्लोटिंग मनी। फ्लोटिंग मनी कम होगा तो क्या हो जाएगा? Yes, you will have less consumable income, and that consumable income could be matched with lower level of productivity, lower level of GDP also.
ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ी है. So these two are related, but why we are learning it right now? To understand its impact on industries, to understand its impact on manufacturing sector especially, because why we are analyzing it? To lead to a certain conclusion that which industries in that particular scenario of inflationary kind of environment or deflationary kind of period. Okay, so whichever period you are facing, for that you want to understand that which industries would be thriving better, which industries would be earning more or maybe profitable. तो ये जितनी भी चीजें हम अभी पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल एनालिसिस हो गया, टेक्निकल एनालिसिस हो गया, एंड एट लार्ज द एंटायर सब्जेक्ट. तो ये पूरा सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं? सो दैट वी कैन अप्रोच टू अ पर्टिकुलर कंक्लूजन कि कौन सी इंडस्ट्रीज अच्छी है, इन्वेस्ट करने जैसी है, बेस्ड ऑन योर ओन मोटिव. अब यहाँ पे मोटिव भी अलग अलग होते हैं कि इफ आई एम स्पेक्युलेटर तो मुझे फिर फंडामेंटल्स में इतना नहीं देखूंगी, मैं टेक्निकल्स पे ज्यादा जाऊंगी, एंड आई कैन हैव support of fundamental analysis, but for fundamental analysis is especially used for long term kind of investments. तो आप ये सारे parameters किस point of view से you will be studying that within 2 year, 5 year or say suppose 7 or 10 years how this particular parameter is going to affect particular industry. ठीक है, तो मतलब ये जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगी आप ये चीज दिमाग में रखना कि एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू, और वो एनालिसिस से आपके डिसीजन पे क्या इम्पैक्ट आएगा वो पॉइंट ऑफ व्यू ही मैं क्वेश्चन पूछने वाली हूँ. ठीक है, तो जैसे समझाया कि प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, इफ इट इज हाई देन एवरीथिंग, मतलब इंडस्ट्रीज एज वेल एज वी एज कस्टमर्स बोथ विल गेट अफेक्टेड. ठीक है, हाई प्राइजेस होंगे तो आपका जो परचेजिंग पावर है या वर्थ ऑफ मनी है दैट विल get reduced for that particular time being, so you will be purchasing less. तो मतलब आपकी साइड से क्या हो गया, डिमांड कम हो गया. Now from industry's perspective, raw material and everything will be costlier than before, and that is going to affect their cost structure. Okay, again she talked about wages and salaries as well. So yes, if it is like inflated economy, your salaries and everything, not only this human resource cost or labor cost, but all cost will be high. And if these costs are high, then what will happen, their productivity is going to be affected, or it may be margin will get suppressed. Okay, and by that way what they'll do, they will have lower level of economic activity. तो प्राइस लेवल और इन्फ्लेशन कैसे अफेक्ट करेगा कि if it is high, it has to be a balanced level, at balanced level, whether it is deficit, whether it is inflation, whether it is any parameter, it should be at a balanced level. Means कि बहुत ज्यादा high भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा low भी नहीं होना चाहिए. बहुत ज्यादा हाई होगा तो क्या हो जाएगा, एवरीथिंग वुड बी मच कॉस्टलियर, तो आपका परचेजिंग पावर कम हो जाएगा, इंडस्ट्रीज की प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट होगी एंड ऑल. बहुत ज्यादा कम हो जाएगा मींस अगर डिफ्लेशनरी है, मतलब आपके पास पैसे ही नहीं है, मतलब प्रोडक्शन तो है, कंपनीज प्रोड्यूस भी कर रही है, बट दे कैन नॉट अर्न द प्रॉफिट मार्जिन विच इज रिक्वायर्ड टू बी टू सर्वाइव. ठीक है, तो डिफ्लेशनरी इससे उल्टा होता है. मैम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा ऐसे बोल सकते हैं अपन. हाँ, जो इफेक्ट इन्फ्लेशनरी में, हाँ, और डिफ्लेशनरी में क्या हो जाएगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी तो अच्छी है, बट जो ये कंज्यूमेबल इनकम होना चाहिए उस टाइम पे क्या होता है, मनी फ्लो कम हो जाता है. ठीक है, तो मनी फ्लो कम होने की वजह से यू डोंट हैव मनी टू परचेज प्रोडक्ट्स, and that's why economy will go into deflation, meaning thereby supply is too huge compared with demand. And again that type of policy or deflationary kind of scenario is also not desired or favorable. तो इन्फ्लेशन भी एक मॉडरेट लेवल का ही होना चाहिए, बहुत कम या बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए. So this I talked in general, but how you can analyze, like you can select one or two. जैसे मैं अगर next assignment दे रही हूँ
तो you will try to first of all understand 10 companies, and those 10 companies are representing which industries. तो आप जैसे मे बी कि आईटी के स्टॉक लिए होंगे, बैंकिंग के लिए होंगे, ठीक है, ऑटो लिए होंगे. सो दिस आर द 2-3 इंडस्ट्रीज इन विच यू आर इंटरेस्टेड. तो फिर आप क्या करोगे, ये सारे पैरामीटर्स, ठीक है, कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, ठीक है. सो how inflation, and again if I am talking about automobile industry, then I need to check inflation for that particular industry कि auto parts हो गए या जो भी चीजें हैं which is required in basic requirements of automobile industry, how this inflation has affected all this intermediate companies, industries and all. अगर उनके प्राइसेस राइज हुए हैं तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अफेक्ट होने ही वाली है और आपके स्टॉक्स अफेक्ट होने ही वाले. ओके, so at very specific level if I want to explain you all these things, you are going to apply practically for your 10 stocks as well in next assignment, कि ये सारे पैरामीटर्स आपके चोजन इंडस्ट्री को कैसे अफेक्ट करने वाले हैं. तो फिर आप क्या करोगे स्पेसिफिक. अभी क्या है, हम जनरल डिस्कस कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, आपका कंज्यूमेबल इनकम कम हो जाएगा, एंड लॉट मेनी अदर थिंग्स वुड बी देयर, बट वी आर टॉकिंग इन जनरल. नाउ इफ यू चूज सर्टन इंडस्ट्रीज, यू कैन डू स्पेसिफिक एनालिसिस कि इन्फ्लेशन की वजह से सपोज मे बी ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स एंड ऑल्सो विच लेवल ऑफ सैलरीज इन जनरल दे हैव टू बी ऑफर्ड. तो इन्फ्लेशन से उनकी सैलरीज पे कोई इम्पैक्ट आया है, इन्फ्लेशन की वजह से ऑटो पार्ट्स के कॉस्टिंग में या प्राइसिंग में कोई इफेक्ट आया है, एंड लॉट मेनी अदर थिंग्स. तो आपको वो वे में एनालाइज करना है. Okay, and is next level analysis what you will be doing if you are a genuine investor and you want to invest for 5 years. So next level of analysis you will be doing that whether this will be a scenario for 5 years, है ना. तो प्रैक्टिकली चीजें काफी अलग होती है. अभी आप क्या कर रहे हो, कंसेप्ट समझ रहे हो कि क्यों हम इसको इम्पोर्टेंट पैरामीटर मानते हैं और कैसे ये अफेक्ट करने वाला है इन जनरल. But when you are doing certain analysis, practically you need to relate it with the specific industry. And when you are comparing or when you are evaluating, analyzing it for specific industries, you know the specific elements where you need to check, है ना. तब जाके आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि एग्जैक्टली कौन से हेड्स मुझे चेक करने हैं, क्या चीजें एग्जैक्टली मुझे प्राइसिंग के लिए चेक करनी है. और नेक्स्ट लेवल पे ये भी कर सकते हो कि अगर मैं 5 साल होराइजन फिक्स कर रही हूँ तो ये इन्फ्लेशन 5 साल परसिस्ट करने वाला है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में. सो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स यू मे थिंक नो इट मे बी द सिनेरियो फॉर ओनली 6 months or 1 year, or after 1 year, yes, I cannot predict so much in future right now, and that's why say suppose this scenario is going to affect just for 1 or 2 years, and then after maybe government may have control on inflation and may have certain support in next budget, and maybe this industry again can be lucrative if this particular parameter is concerned. तो प्रैक्टिकली ये सारी चीजें आप देखोगे कि अभी जो मैं एनालिसिस कर रही हूँ तो वो एडवर्सली इफेक्ट कर रहा है या इन फेवर है, और इन फेवर या एडवर्स है, इज इट लॉन्ग टर्म. तो ये सारी चीजें आप एनालाइज करके, जैसे अभी हम मैट्रिक्स बना रहे हैं ना, वैसे आप लिखते जाओगे कि दिस पैरामीटर इज फेवरेबल इन लॉन्ग टर्म, दिस पैरामीटर इज एडवर्स इन लॉन्ग टर्म, एडवर्स इन शॉर्ट टर्म. सो दिस इज कॉल्ड एनालिसिस. और उसके बेस पे फिर आप वो इंडस्ट्री और इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्टॉक पे जा सकते हो. ठीक है, आया समझ में? यस मैम. ओके, नाउ नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रेट्स. ये समझाओ इंटरेस्ट रेट्स. अगेन इंटरेस्ट रेट इज वेरी जनरल टर्म. आप कौन से पीस ऑफ डिसीजन के लिए उसको टारगेट कर रहे हो वो देखना पड़ेगा. लाइक इफ दिस इंटरेस्ट रेट्स वी आर टॉकिंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, तो बॉन्ड पे इन जनरल अभी क्या ऑफर हो रहा है, ठीक है, आपके एफडीज पे कितना ऑफर हो रहा है, आपके पीपीएफ अकाउंट्स कितने ऑफर कर रहे हैं, या ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स जो लोएस्ट रेट प्रोवाइड करती है, द मोस्ट सेफेस्ट एवेन्यू,
तो वो कितना प्रोवाइड कर रही है. सो दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट फ्रंट फॉर इंटरेस्ट रेट्स. नाउ अदर कुड बी this we talked from deposits or investments point of view. Other could be borrowings. So borrowings point of view, you need to think from that industry and particular company point of view. है ना, कि कितने इंटरेस्ट रेट से बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो funds may be costly if you want to borrow something for your continuing operations, for your working capital requirements, for your long term projects. So how it is going to affect those projects, and how it is going to be part of your cost. Okay, and this will be a fixed burden. So how I am going to handle this fixed burden in upcoming scenario? May it be inflationary scenario, may it be kind of recession. So in recession, economic activities may get slowed down, but you have the fixed interest burden, you have certain debt, or you have certain uh, rate of interest which has to be paid continuously. So that is part of your fixed cost. Okay, it has to be paid. तो ये सारी चीजें, तो every front, whichever concept we are learning is very general, but you have to think from different perspectives, looking for your industry analysis. ठीक है, कि वो interest rates पर्टिकुलर कंपनी को, इंडस्ट्री को, उनके बोरोइंग्स को, उनके फिक्स कॉस्ट स्ट्रक्चर को कैसे अफेक्ट कर सकता है इन पर्टिकुलर सिनेरियो, हाउ इट कुड बी फेवरेबल और इट कुड बी एडवर्स. ठीक है, again investments, like could that level of interest rates divert fund from fixed interest rate avenues to stock to mutual funds. ठीक है, तो ये भी बीच बीच में, like you can see the scenarios or periods in which for few periods it may be like funds may be diverted from equity or mutual fund to fixed interest rate avenues, and in certain periods these are not in much demand. Fixed interest rate avenues may not be in much demand, and these funds may again be shifted or diverted to equity or mutual fund. तो ये सारे सिनारियोज आपको स्टडी करने पड़ेंगे, एंड दैट डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट रेट. ओके, एंड दैट्स व्हाई वी आर लर्निंग दिस कंसेप्ट. हाँ काजल, आप कुछ बता रहे थे. हेलो. ये इंटरेस्ट रेट का ही बोल रही थी मैं. हाँ बोलो. मैम इंटरेस्ट रेट अगर हमें हाई इंटरेस्ट मिल रहा है तो हम इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हैं, और अगर लोन पे हमारा इंटरेस्ट रेट अगर कम होता है तो कंपनीज लोन ज्यादा लेती है, कंपेयर करती है कि कहाँ से वो बोरोविंग करे कि उसको लो कॉस्ट हो. तो एग्जैक्टली राइट. इंटरेस्ट रेट लो होता है तो उनका कॉस्ट भी मिनिमाइज होता है. एग्जैक्टली राइट. यस. तो मतलब आप कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन पिक करोगे या इंडस्ट्री पिक करोगे, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव यू कैन एनालाइज, राइट. बट फॉर दैट, अगर आपको एनालिसिस करनी है तो पहले तो आपके फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए ना, कि अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो कैसे अफेक्ट होने वाला है, एडवर्सली, फेवरेबली, या कैसे. इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं तो इज इट फेवरेबल, इज इट एडवर्स. ओके, इट इज गोइंग टू अफेक्ट इट पॉजिटिवली, नेगेटिवली. तो ये सारी चीजें पहले आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, देन ओनली यू कैन अप्लाई दोज थिंग्स फॉर एनालिसिस पर्पस. ठीक है, तो अभी जो मेरा पर्पस है एक्सप्लेन करने का, वो ये कि प्रॉपर एक डायरेक्शन आपको फिक्स करना पड़ेगा कि भाई ये अगर ज्यादा है, जैसे इन्फ्लेशन ज्यादा है, तो वो एडवर्सली अफेक्ट करने वाला है या फेवरेबल है. कम है तो वो फेवरेबल है या एडवर्सली. सो नेगेटिव, पॉजिटिव, एंड हाउ इट इज अफेक्टिंग पर्टिकुलर इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एनालिसिस करनी है. नाउ नेक्स्ट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेक्स रिजर्व्स एंड एक्सचेंज रेट. yesterday we talked about this as well ना, डेफिसिट में, और इसमें कंफ्यूजन हो गई थी. तो डेफिसिट वी टॉक फ्रॉम बजट पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, कि एक्सपेंसेस आर मोर देन योर रेवेन्यू. एंड नाउ यू कैन टॉक अबाउट ट्रेड डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन. हाँ, सो बैलेंस ऑफ पेमेंट, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? ट्रेड डेफिसिट में मैम जो डेफिसिट आता है ना उसको बैलेंस करना होता है, यस. सो एक्सपोर्ट को इंक्रीज करके और इंपोर्ट को रिड्यूस करके. हाँ. ओके,
Yes. So what balance of payment मैम means? सब टोटल ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट. Okay. Yes, that is also right. तो ये जो होता है ट्रेड डेफिसिट होता है वो कौन कौन सा पार्ट होता है? कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है, किसका पार्ट होता है? हेलो. मैम कैपिटल अकाउंट का होता है. मैम कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है मैम. कैपिटल अकाउंट में मैम हम हाँ उसमें हम एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स. ओके. तो ये कैसे अफेक्ट करेगा हमारे डिसीजन को, वो बताओ. मैम जो बीओपी होता है मैम वो हमेशा 0 होना चाहिए. तो उसके लिए क्या होता है मैम, जो हमें रनिंग्स रहती है एंड दूसरी साइड होता है हमारा कैपिटल अकाउंट, जो इनकम हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट से मिलती है, तो हम करते हैं तो उसको बैलेंस करना जरूरी है. तो मैम उसका फाइनल आंसर 0 होना चाहिए. और अगर कुछ उसमें वेरिएशंस आते हैं तो मैम एक्सचेंज रेट जो फॉरेक्स रिजर्व्स होते हैं ना मैम, उससे बैलेंस किया जाता है. हाँ हाँ, एग्जैक्टली राइट. ओके. तो अब आई थिंक आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा कि व्हेन वी आर डिस्कसिंग गवर्नमेंट बजट एंड डेफिसिट व्हाट you will consider, and when we are discussing balance of payment what you will consider. So that trade deficit we are going to consider in this particular point. Now yes, you told about that it should be 0. Yes, theoretically to match the account or to balance the account it is said that it should be 0, but practically it may not be. Balance of payment may be negative, may be positive. Okay. So if your balance of payment is positive means your exports are more than imports, and by that way you can build up your foreign reserve. So you will have addition to the existing forex reserve. Okay. If your balance of payment is negative, then forex reserves will get depleted, or it would be reduced from the existing level of forex reserves, and based on that exchange rate will move up or down. So if your forex reserves is decreasing, your currency may get depreciate again that particular foreign currency. So this forex reserve is will be made up of different currencies as well, depending on the export import scenario and export import facts and figures. Okay. So considering at this forex reserves, your exchange rate is going to change. Now this is a fundamental concept, basic concept. Now why we are learning this? क्यों? जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स अप या डाउन होंगे, उसके बेसिस पे हमारा एक्सचेंज रेट एप्रिशिएट या डेप्रिशिएट होगा. ठीक है. बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव होगा तो हमारा एक्सचेंज रेट होगा वो डेप्रिशिएट होगा अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर करेंसी. सो इट मे बी डिफरेंट सिनेरियो फॉर डिफरेंट करेंसीज एज वेल, कि कुछ करेंसीज में ऐसा होगा कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी पॉजिटिव, कुछ करेंसीज के लिए नेगेटिव भी हो सकता है. जिस करेंसी के लिए नेगेटिव है उसके अगेंस्ट डेप्रिशिएट होगा, जिस करेंसी के लिए पॉजिटिव है उसके अगेंस्ट हमारा exchange rate appreciate होगा. Okay. So this is basic concept how these three parameters, three concepts are interrelated, and it is related with your trade deficit, that is exports and imports. So 4-5 terms are interrelated. It is exports, imports, then balance of payment, forex reserves, exchange rate. All these parameters are interrelated. Okay. And we try to understand the relationship as well, कि कौन सा up होगा तो कौन सा down जाएगा, या whatever it is, positive या negatively related है. But हम क्यों पढ़ रहे हैं ये, या क्यों एनालिसिस करने की जरूरत है, why it is important? इसको इंडस्ट्री या स्टॉक के साथ कैसे रिलेट करोगे? कौन से स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए ये एनालाइज करने के लिए मैम. तो बट ये कैसे काम आएगा? फॉर एन एग्जाम्पल द स्टॉक विच यू आर टारगेटिंग,
ठीक है। से सपोज वो एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, से सपोज वो कुछ रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट कर रहे हैं, तो जैसे ही यू आर प्रेडिक्टिंग व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू बेस्ड ऑन योर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, योर एक्सपोर्ट इंपोर्ट फिगर्स एंड योर फॉरेक्स रिजर्व्स, यू आर ट्राइंग टू प्रेडिक्ट एक्सचेंज रेट की, या फिर पास्ट 1 or 2 year में क्या सिनारियो था, सो बेस्ड ऑन दैट यू आर ट्राइंग टू forecast that in future what could be the scenario, and based on that your revenues as well as cost is going to be affected. Okay, so where this will be useful, whichever industry or whichever stock you are targeting, you need to check with whether it is export oriented. Okay, if it is export oriented, where it is exactly exporting, and against those currencies what is the status of Indian rupee, whether it is appreciating, whether it is depreciating, and based on that it is going to affect your revenue. If Indian rupee is getting appreciated, you can have higher level of revenue in terms of rupees. Depreciate हो गई तो in terms of rupees that company will get lower revenue. Okay, तो ये क्या हुआ, दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल कि अल्टीमेटली उनके रेवेन्यूज कैसे अफेक्ट होंगे. से सपोज सेम यूनिट इज इंपोर्टिंग समथिंग, सो यू नीड टू चेक फ्रॉम विच कंट्री इट इज इंपोर्टिंग, against that particular country's currency what is the status of Indian rupee. If it is appreciating, then it will be much costlier for you. Okay, or say suppose Indian rupee perspective say, so if Indian rupee is costlier or is getting appreciated, you have to pay less in rupees terms. ठीक है, और अगर डेप्रिशिएटेड करेंसी है, इंडियन रुपी अगर डेप्रिशिएट हो रही है अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर करेंसी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रुपी टर्म में ज्यादा पे करना पड़ेगा. ठीक है, तो दैट पर्टिकुलर company's cost structure is going to be affected by exchange rates. Okay, तो आपने जितने भी स्टॉक्स लिए हैं तो वो स्टॉक के लिए ये एनालिसिस करना भी जरूरी है कि whether it is exporting, whether it is importing, if it is exporting from which countries it is to which countries it is exporting, if it is importing from which countries it is importing. ठीक है, और वो करेंसीज क्या है, करेंसीज के अगेंस्ट उन इंडियन रुपी का स्टेटस क्या है, एंड अकॉर्डिंगली इज इट गोइंग टू अफेक्ट revenue structure positively or negatively, and cost structure positively or negatively. So ultimately you can decide कि उनका operating profit या जो भी ultimate profit होगा वो क्या लेवल हो सकता है वो प्रॉफिट का. ठीक है, अंडरस्टूड. यस मैम. Okay, next is foreign investment. So we will be talking about FDI and FII and why it is required to be analyzed as far as your stock investment decision is concerned. FII and FDI. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मैम, मोस्ट ऑफ आईपीओ में फॉरेनर्स इन्वेस्ट करते हैं, Hmm. तो ये Okay. हेल्प करता है, मतलब आउटसाइड करेंसी इंडिया में आती है और इंडिया Exactly की right. रुपीस अप्रिशिएट होती है, अप्रिशिएट, मनी की वैल्यू बढ़ जाती है इंडिया में. हाँ वही, Yes. रुपीस की वैल्यू बढ़ जाती है. Yes. Very good. Very good. Yes. तो उसका क्या मैकेनिज्म होता है, जैसे कोई फॉरेन इन्वेस्टर से सपोज डॉलर्स, ओके, कोई यूएस इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट कर रही है. ठीक है, तो डॉलर्स का सप्लाई उस टाइम पे क्या होगा, डॉलर्स का सप्लाई बढ़ेगा और इंडियन रुपी की डिमांड बढ़ेगी, एंड दैट्स व्हाई डॉलर में गेट डेप्रिशिएटेड एंड इंडियन रुपी में गेट एप्रिशिएटेड. एग्जैक्टली राइट. सो दैट वे इवन यू कैन, तो ये तो फिर ये दो पॉइंट्स इंटर रिलेटेड हो गए, वैसे भी बोल सकते हो. सो अगेन यस एग्जैक्टली राइट, दिस काइंड ऑफ एनालिसिस. तो फिर अल्टीमेटली वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे या उनके कॉस्ट स्ट्रक्चर पे या रेवेन्यू स्ट्रक्चर पे क्या इम्पैक्ट कर सकता है, दैट यू कैन चेक. ठीक है, अगेन इफ एफडीआई लुकिंग एट अदर पर्सपेक्टिव, जैसे आपने बताया कि दे इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस एंड foreign companies may be investing into FPOs and IPOs. So don't you feel that
that is going to affect management also at upper level. यस मैम, जैसे बहुत हाँ मेजर हाँ तो वो मेजर रोल उनका होता है। ठीक है। तो ये आपने ये जो फ्रंट बताया वो तो करेक्ट है ही है, बट ये फ्रंट पे भी आपको, सो एवरी एलिमेंट, एवरी कंसेप्ट विच यू आर लर्निंग will have different perspectives for analysis. So if we are talking about FIIs and FDIs, they will have say in decision making based on their particular stake, है ना? And that's why till date lot many industries they cannot have more than 49% of the stake, like say suppose in insurance started way back in 2002 or 3 something, like alliances. So in those alliances foreign participant cannot have more than 49% of the stake, because if they have major stake they will have controlling and the ultimate power and decision making and all this thing. So government cannot allow any foreign partner to take decision in Indian economy, and that's why they restrict the stake. ठीक है, but nowadays again ये लिबरलाइज हो रहा है, तो एफडीआईज काफी जगह पे ज्यादा स्टेक पे भी अलाउ हो रहे हैं। ठीक है, जैसे रिटेल में 100% एफडीआई इज अलाउड। ओके, so yes, and if stake is higher, not only controlling, but don't you feel that philosophies and thought processes and everything, है ना? Because top management's thought processes, philosophies, and what exactly their motive, objective behind investment, and how they are going to redistribute these profits and whichever amount is getting invested. So everything would be different, would get decided based on their particular level of stake. ठीक है, तो FII और FDI ये पर्सपेक्टिव से भी आप एनालिसिस करोगे। देन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट स्पेसिफिकली, नॉट एनालाइजिंग एनी इंडस्ट्री और कंपनी। ये चीज मैं किसके लिए बता रही हूँ? इंडस्ट्री और कंपनी एनालिसिस के लिए, कि कौन सी इंडस्ट्री में ज्यादा FDI अलाउड है, तो वो फिर उनका ऑपरेशंस, मैनेजमेंट, एवरीथिंग वुड बी कंट्रोल्ड फ्रॉम द फॉरेन पार्टीज। तो ये एक पर्सपेक्टिव हुआ। दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स वॉल्यूम्स, ओके, दे विल बी चेक्ड फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव एज वेल, कि स्टॉक मार्केट ओवरऑल, नॉट एनी पर्टिकुलर स्टॉक और इंडस्ट्री, ओवरऑल स्टॉक मार्केट में FII मतलब इंस्टीट्यूशनल इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स कितने हैं वो भी चेक होता है। सो दिस वी टॉक फ्रॉम FDI पॉइंट ऑफ व्यू, कि डायरेक्टली कोई बिजनेस में आप IPO या FPO में सब्सक्राइब कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो और समथिंग। ठीक है, अनदर पॉइंट ऑफ व्यू इज FII, मीन्स कि आप पर्टिकुलर स्टॉक्स में कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में जैसे होता है ना कि बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होना, बहुत ज्यादा प्राइसेस बढ़ जाना, कम हो जाना। सो दिस ट्रेडर्स, स्पेशली ब्रोकर्स एंड इंटरमीडिएटरीज, लुक एट FII's मूवमेंट एज वेल, कि उनको किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे लग रहा है कि FII फ्लो बढ़ रहा है, इनफ्लो बढ़ रहा है। सो दे थिंक एज अ पॉजिटिव सिग्नल कि नहीं भाई, इंडियन मार्केट में ट्रस्ट है लोगों को, इंडियन मार्केट ग्रो करने वाला है, ऐसे फॉरेनर्स को या फॉरेन पार्टिसिपेंट्स को लग रहा है, एंड दैट्स व्हाई वी कैन सी हायर लेवल ऑफ FIIs। अब अगर रिवर्स हुआ तो दिल इंटरमीडियरीज एंड ईच पार्टी विल गेट नेगेटिव हिंट कि FIIs मतलब आउटफ्लो हो रहा है। तो आउटफ्लो का मतलब नाउ दे डोंट हैव ट्रस्ट, नाउ दे डोंट एक्सपेक्ट ग्रोथ इन फ्यूचर, एंड दैट्स व्हाई द पैटर्न इज रिवर्स। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको चेक करना है कि ओवरऑल स्टॉक मार्केट में FIIs जो है वो FIIs ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो ये भी एक सिग्नल देगा कि अगर फॉरेन पार्टिसिपेंट्स आर नॉट, एंड अगेन दिस इज गोइंग टू अफेक्ट स्टॉक प्राइसेस, वो बहुत ज्यादा स्टॉक प्राइसेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। जैसे FII इनफ्लो बहुत ज्यादा बढ़ गया, मतलब डिमांड अचानक से बढ़ गई, तो ओवरऑल स्टॉक मार्केट यू कैन सी बीइंग ऊपर इंक्रीज, जाएगा। मतलब आपका हाँ ऊपर जाएगा, सेंसेक्स, निफ्टी ये सब ऊपर जाएगा। और अगर FII आपका आउटफ्लो बढ़ रहा है तो सडन आपको सप्लाई, मतलब सप्लाई बढ़ जाएगी और सडन आपको डिक्लाइन दिखने को मिलेगा योर सेंसेक्स, निफ्टी एंड द ओवरऑल मार्केट।
तो वो पॉइंट ऑफ व्यू वो फ्रंट से भी आप चेक करोगे, ठीक है। नेक्स्ट 2 points are, I think we can finish it off right now. Next is infrastructural facilities and arrangements. I don't think it is required to be explained, है ना. Infrastructure properly, if it is provided in economy like road, transport ले लो, okay. Then technical support, technical infrastructure, then this physical infrastructure, if it is properly developed, then and then only your manufacturing sector can flourish, ठीक है. तो ये भी आप चेक कर सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स क्या है एंड हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट पर्टिकुलर इंडस्ट्री. Yeah, जैसे if we talk about road infrastructure, transport and all, so if these facilities are proper, then and then only you can have your raw material at particular, you know, perfect time and all. तो आपको raw material perfect time पे मिलेगा. Then again conditions and all also matters. तो infrastructural facilities and arrangements you need to check. बट ये पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा है कि एवरी इकोनॉमी इज विल बी शोइंग अपर ग्राफ. कभी ऐसा तो होगा नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चरल, हाँ इट मे हैपन कि इन पर्टिकुलर 2 or 3 years ये थोड़ा उसका ग्रोथ जो होगा वो स्लो हो जाएगा. इट मे हैपन बट इट विल शो ऑलवेज अपवर्ड ट्रेंड. तो आपकी पर्टिकुलर इकोनॉमी, जैसे डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड हम नेशंस बोलते हैं, तो उसके हिसाब से पर्टिकुलर इकोनॉमी में किस टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज है, दैट यू नीड टू चेक. एंड दिस इज गोइंग टू अफेक्ट ऑल द इंडस्ट्रीज इन जनरल, right? And last point is sentiments. For this you are going to learn the entire subject of behavioral finance, so I'm not touching upon that, ठीक है. And sentiments, I think it would be part of this technical analysis more than your fundamental analysis. Fundamental analysis में आप उसको इतना consider नहीं करोगे, ठीक है. Should I end? Next class का time हो गया ना आप लोगों का. यस मैम. यस यस मैम. मैम. आप थोड़ा बहुत पढ़ना भी शुरू करो, है ना. ओके मैम. ओके मैम. थैंक यू मैम. Bye. बाय. थैंक यू मैम. Welcome. Bye. Have a nice day. Take care. थैंक यू मैम. बाय.